آپ سے مخاطب ہوں اور جو ہے وہ آج یہ جو میرا پروگرام ہے یہ میں پیش کر رہی ہوں اس سے پہلے اسباق اردو ادب کے حوالے سے، اور اس سے قبل ہم جو ہے چونکہ نظموں کی بہت سی اصناف پہ بات کر چکے ہیں، اور نظموں کی کچھ ٹیکنیک جو میں بیان کر رہی تھی جو بند کی شکل میں لکھی جاتی ہیں نظمیں، ان کی ہم ٹیکنیک لے کر چلے تھے مثلث سے. تو مثلث سے میں اس ٹیکنیک کو لے کے چلی تھی. مسمت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسمت میں یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے پروئی ہوئی، جڑی ہوئی، اور مسمت ایک صناعی لفظی ہے اور اصطلاحی شعر میں اس سے مراد ہے ایسی نظم جس کے ہر بند میں ایک مقرر تعداد میں مصروں پر مشتمل ہوتے ہیں. تو میں ایسے ہی تمام بندوں کا ذکر کر رہی تھی جس میں سے ایک بند میں 3 مصروں سے لے کر 10 مصروں تک کے بند ہوتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ان مصروں کی گنتی کے لحاظ سے مسمت کی جو اقسام آ جاتی ہیں ان میں مثلث میں جو ہے وہ آپ کے 3 مصروں کا بند، مربع میں 4 مصروں کا بند، مخمس میں 5، مسدس میں 6، اور اسی طرح سے مخمس کے بعد 5 مصروں کا، اور مسدس میں جب آپ آتے ہیں تو 6 مصروں کا بند آپ کا ہو جاتا ہے. اور یہ ان کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے نا وہ بالکل الگ الگ ہوتی ہے جس کی میں سب وضاحت کر چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اور یہ ساری باتیں میں مثلث کی پہ بھی کر چکی ہوں، مربع پہ بھی کر چکی ہوں، اور مخمس پہ بھی کر چکی ہوں، اور پھر مسدس پہ بھی میں آپ کے ساتھ بات کر چکی ہوں. یعنی ان سب چیزوں کو میں نے آپ کو مثالوں کے ذریعے آپ کو میں نے یہ سب سمجھایا ہے. ٹھیک ہے، تو مربع بھی ہم نے بتا دیا، میں نے آپ کو بتایا ہے، اور ساری چیزوں کا جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ان سب کے بارے میں بات کر چکی ہوں. تو آج ہم نے جن چیزوں پر بات کرنی ہے، مخمس بھی ہمارے چونکہ ہو گیا تھا، میں نے بتا دیا تھا 5 مصروں والا بند جو تھا اس کی مثالیں بھی میں آپ کو دے چکی ہوں. شعراء کا کلام بھی اس پر میں آپ کو سنا چکی ہوں. مسدس کے حوالے سے جب میں نے بات کی تھی تو آپ کو میں نے بہت سے معروف شعراء کا کلام بھی اس میں آپ کو سنایا تھا اور بتایا تھا کہ وہ کس طرح سے لکھی جاتی ہے، اس کی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے. اور مسدس کے بعد جب ہم دوسرے آگے آئے تھے تو مسدس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے مصبہ میں 7 مصروں کا بند ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تفصیل سے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کر چکی ہوں. جی شاعرہ سیمی بہت شکریہ. اور پھر مسمن پر ہمیں آ گئی تھی، اور مسمن میں 8 مصروں کا بند لیا جاتا ہے، اس پر بھی میں بات کر چکی تھی. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے متصا یعنی 9 مصروں کا بند. ایسی نظم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی نظم ہے جس کے ایک بند میں 9 مصرے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پہلے 8 مصرے تو ہم قافیہ، ہم ردیف، ہم وزن ہوتے ہیں، جس کا نواں مصرع یا آخری مصرع بند کا اسی بحر اور وزن میں ہوتا ہے مگر اس کا قافیہ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ہے یا پھر دوبارہ سے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ایک ایسی نظم ہے جس میں 9 مصرے ہوتے ہیں. پہلے 8 مصرے ہم وزن، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، جبکہ نواں یا آخری مصرع الگ قافیے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت جس طرح سے ساری ہم اصناف پر گئے ہیں بالکل یہ اسی طریقے سے ہے، بس تھوڑا بہت معمولی سی کچھ اصناف میں جو ہے تبدیلیاں آئی تھیں. یہ اس ٹیکنیک میں بندوں کی جو ٹیکنیک تھی ان میں بعض کی تبدیلی تھی، کس طرح ہم نے ان کو متلے سے ملانا ہے، یا پہلے بند کے جو ہے وہ ہم نے بند میں جو قافیے لیے ان کو کس طرح سے برتنا ہے. یہ ہم ان چیزوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. ان میں بالکل الگ الگ طریقوں سے جس جگہ ضرورت تھی وہ میں نے آپ کو سب کو سمجھایا تھا. لیکن آج صرف متصا کی ہم بات کریں تو متصا کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. متصا جو ہے وہ صرف اتنی سی بات ہے اس میں کہ 9 مصروں کا بند والی جو نظم ہوتی ہے اس کو ہم متصا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسی نظم ہے جس کے 8 مصرے ہم قافیہ، ہم ردیف ہوں گے، اور جو اس کا نواں مصرع ہم لیتے ہیں وہ اس کا آخری مصرع بند کا جو ہوگا نواں مصرع، اس کی بحر اور وزن تو وہی رہے گا جو کہ ہم نے شروع میں لیا تھا. ساری پوری نظم کا وزن وہ بحر وہی رہتی ہے. تو لیکن وہ جو نواں مصرع ہم نے لیا اس کا قافیہ بدل جاتا ہے. اب میں اس کی آپ کو ایک مثال سنا دیتی ہوں، اور سنانے کے بعد پھر میں ہم اگلی طرف جائیں گے کیونکہ آج ہمارے موضوعات ہیں اس میں ہم متصا پہ بات کر رہے ہیں، پھر معاشر پہ بات کریں گے یعنی 10 مصروں کا بند، اور پھر ترکیب بند اور ترجیح بند. اس طرح سے ہم نے جو ٹیکنیک لی تھی نظم کی، یہ جو ہم نے بندوں کی شکل میں جو نظم لکھی جاتی ہے جو مثلث سے شروع ہوتی ہے، 3 مصروں سے شروع ہوتی ہے اور 10 مصروں کے بند تک جاتی ہے، اور 10 مصروں کے بند کے بعد پھر ترکیب بند اور ترجیح بند پر ختم ہو جاتی ہے. پھر نظم کی بہت ساری دوسری ٹیکنیکس آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیک بالکل ایک جدا گانا ٹیکنیک تھی جو بندوں کی شکل میں لکھی جاتی تھی، مثلث سے شروع ہوئی تھی اور معاشر میں جا کر ختم ہوتی ہے. 3 مصروں کے بند سے لے کر 10 مصروں کے بند تک جاتی ہے، اور ترکیب بند اور ترجیح بند بھی جو ہے اسی طریقے سے اس میں لکھا جاتا ہے. تو یہ ایک چونکہ ٹیکنیک چل رہی تھی، اور میں اس سے پہلے ساری بات 8 بندوں تک کی بات کر چکی تھی کہ 8 مصروں کا جو بند ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کون سا ہوتا ہے.
आज हमने 9 मिसरों के बंद की बात करनी थी, वो है मतस्सा। मतस्सा 9 मिसरों का बंद, यानी 9 मिसरे आएंगे, है, ठीक है। अब मैंने तारीफ़ आपको उसकी बता दी है। अब मैं आपको उसकी एक मिसाल सुना देती हूँ कि ये है संदेशा परदेसी साजन का। तो अगर आपका मुल्क से बाहर, आपके शौहर बाहर गए हुए हैं, तो वहाँ से अगर कोई उनका मैसेज आता है, चूँकि ये एक मैंने इनमें मौज़ूआती एतबार से या सलूक के एतबार से या इसमें नज़्म में मैंने जो है, जहाँ मेरी नज़में इस्लाही भी हैं बहुत सी, मैंने जो इससे पहले भी आपको सुनाई है अल्लामा इकबाल के हवाले, अल्लामा इकबाल की फ़िक्र और सोच लेकर मैं आगे बढ़ी हूँ, तो मैंने वो नज़में भी कही हैं। लेकिन बाज़ नज़मों में हमने इस बात का ख्याल रखा है कि कोई बात नहीं, रोमांटिक मौज़ूआत भी आते हैं, तो चूँकि ये बंद की शक्ल में नज़म लिखी जा रही है और इनका असलूब ज़्यादातर लोगों ने यही अपनाया था, ज़्यादातर ने नहीं, बहुत से लोगों ने तो मुख्तलिफ भी अपनाए हैं। लेकिन मैंने भी अगर मौजू लिया है कोई, तो उसमें मैंने ये ख्याल नहीं रखा कि मैं इसको इस्लाही बनाऊँ या इसको कुछ खुश्क बनाऊँ। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट मौजू, मुख्तलिफ मौजू रख के थोड़ा सा दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। तो गो के मैं इस तरह का कलाम कम लिखती हूँ, लेकिन बहरहाल चले मैंने ये आपके लिए ही लिखा है और उसका उन्वान है संदेशा परदेसी साजन का। तो जब चूँकि संदेशा है परदेसी साजन का, तो वो नज़्म बिल्कुल उसी तरह जाएगी। तो आप देखेंगे कि इसका जो बंद की शक्ल में लिखी जाएगी ये नज़्म, और बंदों की तादाद कितनी होगी ये आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। चूँकि संदेशा आया है, अब वो उसने कितनी बड़ी बात की है, ज़्यादा लंबा ख़त लिखा है तो ज़्यादा बंद की नज़म हो जाएगी। अगर कोई मुख्तसर बात लिखी है तो मुख्तसर बंद में नज़म में आप महदूद कर देंगे अपनी बात को। तो ये कोई भी मौजू आप ले लेंगे, ठीक है। अगर आप मतस्सा की सिन्फ में कोई नज़म लिखना चाह रहे हैं तो आपको बंद की शक्ल में लिखनी पड़ेगी, 9 मिसरों का बंद लेना पड़ेगा। मौजू आपका इंतखाब शायर ख़ुद करेगा, वो जिस मौजू पे चाहे वो लिख सकता है। वो भी कोई इस्लाही पहलू भी हो सकता है, कोई माशरती पहलू भी हो सकता है, समाजी भी हो सकता है, सियासी भी हो सकता है। कोई भी आप मौजू मुंतखब कर सकते हैं, उस मौजू पर आप नज़म लिख सकते हैं। कोई भी किसी भी बहर का आप इंतखाब कर सकते हैं, बहर की भी कोई पाबंदी नहीं है। जितनी बहरें हम दूसरी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, दूसरी नज़मों में इस्तेमाल करते हैं, दूसरी गज़ल में इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम बहर में से कोई भी बहर में किसी बहर का इंतखाब करेंगे और उसी बहर में पूरी की पूरी नज़म जो है जो बंद की शक्ल में लिखी जाएगी, 9 मिसरों के बंद में हम लिखेंगे। तो मतस्सा की ये मैं अब मिसाल आपको सुना रही हूँ। तकरीबन सारी बातें मैंने बता दी कि मतस्सा में हम 9 मिसरों का बंद लेंगे। 8 मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होंगे और 9वां मिसरा अलग रदीफ़ काफ़ी के साथ आएगा। इस नज़्म का उन्वान है संदेशा परदेसी साजन का। खबर जब से आमद की तेरी सुनी है, खबर जब से आमद की तेरी सुनी है, अजब इस तरह भी इसी दिल को लगी है। न जाने ये कैसी अजब बेकली है, मिलन की कभी दिल में ख्वाहिश हुई है, कभी मौज दर मौज दिल में उठी है। मेरी हालत दिल पे क्या हो चली है, मेरी हालत दिल ये क्या हो चली है। जली आँख में ये अजब रोशनी है, कहीं तीरगी मुँह छुपाने चली है। हवा बन के मुझसे मिलन को तू आजा। आपने देखा, मैंने पहला बंद आपको सुनाया, इसके 9 मिसरे थे। 8 मिसरों में हमने रदीफ़ काफ़िए की जो पाबंदी ली है। काफ़िया तो आपको पता है हम आवाज़ होता है, तो हम वज़न हम आवाज़ हम रखते हैं। काफ़िया और रदीफ़ हमारी हमेशा यकसा रहती है, जो हम एक में लेते हैं वो हम आगे भी लेके वही चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर काफ़िया लिया था सुनी, लगी, कली, हुई, उठी, चली, रोशनी चली। तो ये सारे हमारे काफ़िए थे। रदीफ़ हमारी इसमें है थी। 8 मिसरों में हमने इन्हीं काफ़ियों की पाबंदी की। हम आवाज़ काफ़िए और हम वज़न काफ़िए हमने लिए, और उसके बाद हमारा जब 9वां मिसरा आया तो उसमें हमने अपना काफ़िया बदल दिया। हमने कहा, फिर मैं आपको सुनाती हूँ, गौर से सुनिएगा। अब मैं दरमियान में नज़्म के नहीं बोलूँगी, बल्कि पूरी नज़्म आपको सुनाऊँगी। अब आप खुद महसूस कर लीजिएगा कि किस तरह से नज़्म में 8 मिसरों में रदीफ़ काफ़िए की पाबंदी की गई। और ये अब हर बंद में यही रदीफ़ काफ़िए नहीं लिए जाएंगे, हर बंद में हमारे रदीफ़ काफ़िए तब्दील होते जाएंगे, ठीक है। वो हमारी मर्ज़ी पर मुनहसर है कि अगला जो बंद हम लिख रहे हैं उसके रदीफ़ काफ़िए 8 मिसरों के कोई और ले रहे हैं। उनके 8 मिसरों में एक ही रदीफ़ काफ़िया आएगा, ठीक है। तो वही उसी हम काफ़िया लफ्ज़ आएंगे। फिर अगला बंद लेंगे, उसका रदीफ़ काफ़िया फिर हम बदल लेंगे, और वो भी हम काफ़िया हम रदीफ़ पूरे 8 मिसरों में वही आएगा, 9वां चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हर बंद के रदीफ़ काफ़िए भी आप देखिएगा कि बदल रहे हैं, और रदीफ़ काफ़िए बदलने के साथ साथ जो 9वां मिसरा आता है उसका रदीफ़ काफ़िया बिल्कुल जुदा हो जाता है। फिर सुना रही हूँ, अब तवज्जो से सुनिएगा। दरमियान में मैं अब नहीं बात करूँगी, नज़्म सुनाऊँगी। आप महसूस कर लीजिएगा कि इस मिसाल में मैंने जो बातें आपको बताई हैं क्या वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। खबर जब से आमद की तेरी सुनी है, अजब इस तराबी सी दिल को लगी है। न जाने ये कैसी अजब बेकली है, मिलन की कभी दिल में ख्वाहिश हुई है, कभी मौज दर मौज दिल में उठी है। मेरी हालत दिल ये क्या हो चली है, जली आँख में ये अजब रोशनी है, कहीं तीरगी मुँह छुपाने चली है। हवा बन के मुझसे मिलन को तू आजा।
तेरे साथ शामें गुजारूंगी साजन, तुझे दिल ही दिल में पुकारूंगी साजन, तेरे रास्ते भी बहारूंगी साजन, घनी जुल्फ अपनी संवारूंगी साजन, तेरा चेहरा खुद मैं निखारूंगी साजन, तेरे दिल में ठंडक उतारूंगी साजन, मैं तेरे लिए पित्ता मारूंगी साजन, तेरा खाना खुद मैं भगारूंगी साजन। एक घरेलू औरत है जो अपने शौहर का इंतज़ार कर रही है, तो उसकी ज़बान भी वही है, असलूब भी वही है और उसी तरह से वो बात कर रही है, तो इसमें जो गुफ्तगू का अंदाज़ है वो भी वही है। तुझे खुश रखूँगी, तुझे जीत लूँगी। ठीक है, फिर अगला बंद चलता है। कभी दिल की महफिल सजाया करूँगी, कभी गीत तुझको सुनाया करूँगी, कभी पास सागर मिलाया करूँगी, कभी जामे उल्फत पिलाया करूँगी, खफा तुमको करके मनाया करूँगी, किसी तौर तुमको सताया करूँगी, इन आँखों में दीपक जलाया करूँगी, तुम्हें पास अपने बुलाया करूँगी, अजब नशा छाएगा हम पर मिलन का। तू मेरे मैं तेरे सहारे चलेंगे, तू मेरे मैं तेरे सहारे चलेंगे, जब कभी हम समंदर किनारे चलेंगे, जहाँ भर के करने नज़ारे चलेंगे, तू आँखों में अपनी इशारे चलेंगे, सभी दूर जाकर पुकारे चलेंगे, चमन ज़िंदगी का सवारे चलेंगे, दिलो जा में ठंडक उतारे चलेंगे, बदन और चेहरे निखारे चलेंगे, ये बातें समझ कर चले आओ साजन। कभी ख़त्म अपना न होगा सफ़र, ये मोहब्बत का पक्का है रंगो असर, ये नहीं मेरे दिल में किसी का भी डर, ये कोई छीन लेगा मोहब्बत नगर, ये तुम्ही को पुकारेगा दिल ये जिगर, ये तलाशेगी तुमको हर एक जा नज़र, ये बहुत ही तनावर बना है शजर, ये तेरे वास्ते है सभी कुछ मगर, ये मेरी जान जाने से पहले चला आ। ज़माने में दिल के ठिकाने बहुत हैं कि दूई के मौसम सुहाने बहुत हैं, ज़बानों पे उल्फत फसाने बहुत हैं, भरे इससे दुनिया ज़माने बहुत हैं, हर एक दिल है आशिक दीवाने बहुत हैं, दवाने का इस्तेमाल किया है, दवाने बहुत हैं, बहुत कम है नादा सियाने बहुत हैं, छुपाने को सर आशियाने बहुत हैं, यहाँ या वहाँ आस्थाने बहुत हैं, मगर घर के जैसी न लज्जत कहीं है। ठीक है, किसी गैर की तुम हिमायत न करना, कभी दुश्मनों से मोहब्बत न करना, बग़ैर ज़रूरत सखावत न करना, अमानत में मेरी ख़यानत न करना, कहीं धूप देखो तो रहमत न करना, कि एहसान करने की जहमत न करना, कोई भूल कोई हिमाकत न करना, कि बेआसरा पर लताफत न करना, लगाता है चेहरे पे चेहरा ज़माना। आप देखिएगा, ये एक सादा औरत की कहानी है कि जो अपने परदेसी साजन को लिख रही है, संदेशा अपने परदेसी साजन को भेज रही है जो जा रहा है, तो उसको वो कह रही है, और इस बंद में उसने किस तरह से तंबीह की है और उसे कहा है कि देखो किसी की बातों में ना आ जाना, किसी के फ्रेम में ना आ जाना, किसी धोखे में ना आ जाना। एक औरत है जो अपने शौहर को तसल्ली दे रही है, या अपने साजन को या अपने परदेसी महबूब को तसल्ली दे रही है और बता रही है कि घर जैसी नेमत कहीं नहीं आपको मिलेगी, तो घर की जो नेमत है उसको मत भूल जाना, घर की मोहब्बत को कभी भी फरामोश ना कर देना। फिर वो आगे चलती है, यह मदरसा में लिख रहे हैं, 9 मिसरे चल रहे हैं हमारे। सदा ख्वाब अपने दिखाते हो मुझको, मेरे बहुत पास अपने बुलाते हो मुझको, यूं ही खिलखिला के हंसाते हो मुझको, कभी बुद्धि से सताते हो मुझको, मैं रूठूं तो फ़ौरन मनाते हो मुझको, गले से भी अपने लगाते हो मुझको, जुदाई में तो गुनगुनाते हो मुझको, मिलूँ तो बहुत गुजराते हो मुझको, चले आओ सपने हकीकत बना लें, तू आए तो तेरी मैं हमसर बनूंगी, संवारूंगी किस्मत सिकंदर बनूंगी, छुपा ले जो तुझको वो चादर बनूंगी, मैं वुसअत में मिसले समंदर बनूंगी, मैं जोगी बनूंगी कलंदर बनूंगी, मैं वुसअत में मिसले समंदर बनूंगी, मैं जोगी बनूंगी कलंदर बनूंगी, अगर मुझको तुम्हें तो पत्थर बनूंगी, जो लिखे तो करता सो दफ्तर बनूंगी, तेरी पारसा नेक अख्तर बनूंगी, तेरी पारसा नेक अख्तर बनूंगी। एक बीवी के ख्यालात हैं, मगर मुझको धोखा ना देना कभी भी, तेरे ख़त ने मुझको दीवाना किया है, तभी डाकिए ने ये मज़दा दिया है, तेरे ख़त को हाथों में मैंने लिया है, कई बार छुप छुप के इसको पढ़ा है, ये मज़दा जो आमद का तूने दिया है, मेरे दिल से सीने से तकिया लगा है, बड़ी मुश्किलों से ये अरसा कटा है कि गुजरा हुआ मेरा कमरा सजा है, जो आया तो इस बार जाने न दूंगी, मुकद्दर से मुझको दिखाया ये दिन भी, मेरे पास ज़ेबी फिराया ये दिन भी, कहीं गर्दिशों ने फिराया ये दिन भी, नजूमों कमर ने घुमाया ये दिन भी, खुदा मेरी किस्मत में लाया ये दिन भी, मुकद्दर में मेरे बसाया ये दिन भी, तेरा शुक्र मौला बनाया ये दिन भी, कि दस्ते हुनर ने कमाया ये दिन भी, ये कैसी खुशी है कहीं मर ना जाऊँ। तो आपने देखा कि ये इंतज़ार अपने शौहर का जो परदेश में जाके रोज़ी कमाते हैं, उनके हवाले से एक औरत ने अपनी बीती लिखी है, अपने जज्बात की अक्कासी की है, और ये नज़्म जो है मतस्सा में लिखी गई और बंदों की शक्ल में लिखी गई। 9 मिसरे इस बंद में थे, हर बंद में थे,
8 مصرے ہم کافی ہم ردیف تھے، 9واں مصرے کا ردیف کافی تبدیل ہو گیا تھا، اور متسا میں بہت کم شاعروں نے نظمیں لکھی ہیں۔ متسا یعنی 9 8 مصرے کے بند جو ہوتے ہیں، لوگوں نے مسدس تک تو زیادہ تر لوگوں نے بندوں کو استعمال کیا، یعنی 6 مصرے تک کی نظمیں لکھی ہیں، پھر 7 مصرے کی، 8 مصرے کی اور 9 مصرے کی نظمیں ہمارے شاعروں نے بندوں میں کم لکھی ہیں، یعنی بند کی شکل میں۔ تو